آپ کی روزمرہ زندگی ایک لاشعوری پروگرامنگ کی مدد سے چلتی ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں اور ہم دنیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، یہ سب کچھ یہی پروگرامنگ کنٹرول کرتی ہے۔ جب بات مالی معاملات اور فائنانسز کی آتی ہے تو ہم میں سے بہت سوں کا اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا مقابلہ ایک دھاندلی زدہ نظام سے ہے، اور ہمارا تعلیمی نظام اسی دھاندلی زدہ نظام کی مدد سے مشروط طور پر ہمیں غریب رکھتا ہے۔ ہماری رسمی تعلیم میں مالی خواندگی کی یعنی کہ فائنینشیل لٹریسی کا کوئی بھی عنصر شامل نہیں ہوتا۔ انویسٹمنٹ پر لگنے والے ٹیکسز کا بجٹ کیسے بنانا ہے، کیسے ایک کاروبار کو شروع کرنا ہے اور کیسے اس کاروبار کو چلانا ہے، اس میں سے کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا ہم میں سے اکثریت کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ عملی فائنینشیل دنیا میں کیسے داخل ہونا ہے، سوائے اس کے کہ ایک تنخواہ سے دوسری تنخواہ تک کا انتظار کرنے والے ملازم بن جائیں۔ میں اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کے ساتھ بہت ہی اہم معلومات شیئر کروں گا جو ہمارے اسکول ہمیں پڑھانے اور سکھانے میں ناکام رہے، اور جس کی مدد سے آپ اس تنخواہ والے چکر سے نکل سکیں گے۔ پہلے نمبر پہ ہے دولت کی مساوات، منی ایکویشن۔ جب ہم ایلون مسک، بل گیٹس اور جیف بیزوس جیسے خود ساختہ ارب پتی لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک مشترکہ چیز نظر آتی ہے جو ان کی کامیابی کی داستانوں کو ایک دھاگے کے ساتھ باندھتی ہے، اور یہ مشترکہ چیز ہمیں اسکولوں میں پڑھائی جانے والی چیزوں سے یکسر مختلف ہے۔ یہ لوگ اپنی زندگیوں میں عملی طور پر یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ دولت صرف ایک نوکری سے کمائی گئی تنخواہ کی سادہ مساوات نہیں ہے۔ لوگ بڑی آسانی سے اس جال میں پھنس جاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کمائی کا براہ راست تعلق وقت سے ہے۔ ہم زیادہ دیر کام کریں گے تو زیادہ کمائی ہوگی، تھوڑی دیر کام کریں گے تو تھوڑی کمائی ہوگی۔ لیکن میں اپنے تجربے اور دولت کی مساوات کا ایک بالکل مختلف رخ دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ سوچ بہت ہی محدود اور گمراہ کن ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ 1 گھنٹے کے $20 کماتے ہیں اور ایک ہفتے میں آپ 40 گھنٹے کام کرتے ہیں تو آپ کو 25 سال لگیں گے $10 لاکھ کمانے کے لیے۔ ابھی اس میں سے ہم نے ٹیکس نہیں نکالا، 25 سال کے عرصے کے دوران کیے جانے والے اخراجات نہیں نکالے، اور 25 سال کے دوران ہونے والی مہنگائی کو بھی نظر انداز کیا ہے۔ لہٰذا حقیقت میں 25 سال کے بعد آپ کے پاس بہت ہی کم پیسہ بچے گا۔ تو $20 فی گھنٹہ کمانے کی صورت میں آپ ایک ہی راستہ اختیار کر کے کروڑ پتی بن سکتے ہیں: ساری زندگی سخت ترین محنت کریں اور کفایت شعاری کے ساتھ گزر بسر کریں۔ جو چیز کروڑ پتی خصوصاً ارب پتی لوگوں کو ہم سے الگ کرتی ہے وہ ان کی دولت کے بارے میں بنیادی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ انہوں نے دولت کی اس ڈیفرنٹ ایکویشن کو سمجھا اور استعمال کیا جو نہ تو اسکولوں میں سکھائی جاتی ہے اور نہ ہی گھروں میں۔ انہیں یہ معلوم ہے کہ دولت کی تشکیل وقت کے بدلے پیسہ کمانے سے کم، ایسٹ سے فائدہ اٹھانے، سمجھداری سے انویسٹمنٹس کرنے اور ایسے سسٹمز بنانے میں زیادہ ہوتی ہے جو ان کے لیے انکم جنریٹ کرتے رہیں حتیٰ کہ وہ کام بھی نہ کر رہے ہوں۔ یہ کامیاب لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ دولت کمانے کا واحد طریقہ وقت کے ساتھ تبادلہ ہے۔ اس روایتی چکر سے نکلنے کے لیے اس بات کو سمجھنا ہمارے مقصد کے حصول کی طرف پہلا قدم ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے صحیح وقت کا انتخاب کرنا۔ آپ کو اپنی زندگی کے دوران 3 سے 5 معاشی بحرانوں یعنی کہ اکنامک ڈاؤن ٹرنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ادوار خوفناک اور ڈراؤنے ہو سکتے ہیں اور ان کے دوران شاید آپ یہ سوچیں کہ اخراجات کو کم کیا جائے اور بچت کی جائے، لیکن اکثر اوقات ایسے ادوار دولت کمانے کے لیے بہت اہم مواقع فراہم کرتے ہیں۔ جہاں بہت سے لوگ ایسے ادوار میں فکر مند ہو کر اپنی سیونگز کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہیں امیر لوگ تیزی سے اپنی دولت کو انویسٹمنٹس میں لگا رہے ہوتے ہیں۔ وہ شیئرز خرید رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی پراپرٹیز خرید رہے ہوتے ہیں، وہ بنیادی طور پر شرط لگا رہے ہوتے ہیں کہ ایک دن حالات بہتر ہوں گے، اور آخر کار جب مارکیٹ دوبارہ بحال ہوتی ہے جیسا کہ ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں تو یہ سرمایہ کار معیشت کی بحالی کی اس لہر پر سوار ہو کر پہلے سے بھی زیادہ امیر ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف جو لوگ اس دوران صرف بچت کرتے رہے انہیں مہنگائی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ انفلیشن آسمان کی بلندیوں پر پہنچا ہوا ہوتا ہے، اور جب مارکیٹ اور معیشت بحالی کی طرف جاتی ہے تو انہیں کسی قسم کا کوئی منافع نہیں ملتا کیونکہ انہوں نے شروع میں کوئی سرمایہ کاری ہی نہیں کی ہوتی، کوئی انویسٹمنٹ ہی نہیں کی ہوتی۔ آپ کو باقاعدگی کے ساتھ اور مسلسل انویسٹمنٹ کرنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ سرمایہ کاری کے مختلف آپشنز اور اپرچونٹیز کے بارے میں سیکھنا شروع کریں، انفارمڈ اور کیلکولیٹڈ رسک لیں اور مستقل مزاج بنیں۔ ایسا کرنا واضح فرق ثابت ہو سکتا ہے اگلے 5 سال میں فائنینشیل سیکیورٹی حاصل کرنے اور اسی ریٹ ریس میں پھنسے رہنے کے درمیان۔
सिर्फ बचत करने की बजाय पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट एक इतना अहम सबक है जो हमारे फाइनेंशियल मुस्तकबिल को कंप्लीटली रीडिफाइन कर सकता है। नंबर 3 पे आता है लेवरेज, अपने असासजात और अपनी दौलत से फायदा उठाना। हम में से बहुत से लोग कर्ज को बोझ समझते हैं, लेकिन दौलतमंद और अमीर लोगों के लिए कर्ज का यही तस्वर लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल होता है। और ये फर्क महज अल्फाज के मानों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये कर्ज के बारे में सोचने और कर्ज की रकम को इस्तेमाल करने के दो मुख्तलिफ तरीकों की नुमाइंदगी करता है। मार्क जुकरबर्ग ने बेतहाशा दौलत होने के बावजूद कैलिफोर्निया में अपने घर खरीदने के लिए $6 मिलियन कर्ज लिया था। बियॉन्से एंड जेजी ने अपने $88 मिलियन के घर के ऊपर $52 मिलियन कर्ज लिया था। इलॉन मस्क ने कैलिफोर्निया में मौजूद अपनी 5 प्रॉपर्टीज के ऊपर $50 मिलियन कर्ज लिया था। अगर कर्ज इतना ही बुरा है तो ये अमीर कबीर लोग जो इन चीजों को यकमुश्त अदायगी करके खरीद सकते हैं, वो क्यों ज्यादा से ज्यादा कर्ज लेते हैं? सबसे नुमाया और अहम फर्क ये है कि कर्ज पर ली हुई रकम का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। क्या उसे मजीद दौलत कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या पहले से कमाई हुई दौलत को जाया करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ज्यादातर लोग कर्ज कंज्यूमर लोन या सार्फी कर्जों की शक्ल में लेते हैं, जिनसे वो ऐसी चीजें खरीदते हैं जो दौलत जनरेट नहीं करती, मसलन टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल। जबकि दूसरी तरफ दौलतमंद लोग अमूमन लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं मजीद दौलत कमाने के लिए। वो इस कर्ज की रकम से ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी कीमत में वक्त गुजरने के साथ साथ इजाफा होता है, मसलन रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज, बिजनेस वेंचर्स। और मॉर्गेज या अपने घर के ऊपर कर्ज लेना सबसे सस्ता कर्ज होता है। लिहाजा ये अमीर कबीर दौलतमंद लोग अपना घर खरीदने के लिए सस्ता कर्ज ले लेते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो अपनी जाती दौलत से दूसरी चीजें खरीदते हैं जिन पर मुनाफे की शरह कर्ज की शरह से ज्यादा होती है। मतलब वो कर्ज को भी एसेट्स में तब्दील कर देते हैं। आपको कर्ज और लेवरेज के दरमियान फर्क को समझना चाहिए कि कैसे आप इसे अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि अपने खिलाफ। चौथे नंबर पे आता है सोशल प्रूफ से इज्तनाब करना या किनारा कशी इख्तियार करना। अंग्रेजी की कहावत है कि कीपिंग अप विद जोनसेस। इसकी तशरीह कुछ यूं की जा सकती है कि एक समाजी दबाव है जो आपको अपने पड़ोसी की मलकियत में गैर अहम चीज़ों या उसके समाजी रुतबे या सोशल स्टेटस से मुकाबला करने पर मजबूर करता है। और ये कॉन्सेप्ट पड़ोसी से मुकाबला करने से बहुत आगे तक जाता है। हमारा ये मुआशरा दोस्तों, मशहूर शख्सियात और सोशल मीडिया ट्रेंड्स से मुतासर है। आज के इस डिजिटल दौर में जहां हमारी जिंदगियां मुकम्मल और मुसलसल तौर पर नुमाइश पर लगी हुई हैं, ये दबाव और भी बढ़ जाता है। हम अपनी अहमियत और रुतबे का अंदाज़ा इस बात से लगाते हैं कि हमारी सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक्स और कमेंट्स कितने मिले हैं या हमने कपड़े कैसे पहने हुए हैं। ये दबाव हमारी फाइनेंशियल फैसला साजी की सलाहियत पर असरअंदाज हो सकता है और हम अपनी फाइनेंशियल फैसले अपनी ख्वाहिशात और सोशल वैलिडेशन को मद्देनजर रख के कर सकते हैं, बजाय इसके कि प्रैक्टिकलिटी को सामने रख के फैसले किए जाएं। महंगी और लग्जरी चीजें खरीदना बुरी बात नहीं है। मसला उस वक्त पैदा होता है जब ये खरीदारियां दौलतमंद नजर आने की ख्वाहिश पे की जाएं, बजाय इसके कि आपकी माली हालत की सही अक्कासी करने के लिए। हम अक्सर कहते हैं कि चादर देखकर पांव फैलाएं। बिल्कुल उसी तरह अपनी हदूद में रहते हुए अपनी ज़रूरतों के मुताबिक अपने फाइनेंशियल फैसले करें। अपने पड़ोसी से अच्छा नजर आने की दौड़ में अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल टारगेट्स को दांव पर मत लगाएं। यह सबक अगरचे स्कूलों में शाज़ो नाज़री पढ़ाया जाता है, लेकिन ऐसी दुनिया में माली तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है जहां ज़ाहरी शक्ल को असलियत पर तरजीह दी जाती है। 5वें नंबर पे आता है टैक्स की अंडरस्टैंडिंग, टैक्स की सूझबूझ। टैक्स की अंडरस्टैंडिंग एक बहुत ही अहम चीज़ है, लेकिन हमारे तालीमी निज़ाम में इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया है। ऐसे बहुत सारे कानूनी रास्ते मौजूद हैं जिनकी मदद से आप अपने टैक्स बिल को कम कर सकते हैं। मसला बस ये है कि या तो हमें उन तरीकों का पता नहीं है या हम उसके मुतल्लिक़ इल्म हासिल ही नहीं करना चाहते। अमीर कबीर और दौलतमंद लोगों की दुनिया में टैक्स कवानीन की पेचीदगियों को समझना और लूप होल से फ़ायदा उठाना आम सी बात है। सिर्फ दौलतमंद और कारोबारी लोग ही इन टैक्स कवानीन के लूप होल से फायदा नहीं उठा सकते। आप एक एम्प्लॉय होते हुए भी अपने नॉन टैक्सेबल इनकम सोर्स को बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर रिटायरमेंट पेंशन कंट्रीब्यूशन। आपको इस सिस्टम को समझना है और इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। टैक्स कवानीन काफी मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन इनकी बुनियादी अंडरस्टैंडिंग आपको हजारों की बचत करवा सकती है। नंबर 6 पे है पैदावार पे तवज्जो देना,
फोकस ऑन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन और कंजम्पशन के दरमियान फ़र्क को नेटवर्थ कहते हैं। आपकी ज़िंदगी में दौलत आएगी क्योंकि आपने किसी चीज़ की वैल्यू में इजाफा किया है। ये दौलत की पैदावार है, प्रोडक्शन ऑफ मनी। और दौलत आपकी ज़िंदगी से निकल जाती है कंजम्पशन के ज़रिए या फिर पैसा खर्च करने से। पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में बहुत से लोग मुकम्मल तौर पर दौलत की मसावात के सिर्फ एक ही पहलू पर फोकस करते हैं और वो है कंजम्पशन साइड। मेरी ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मनी इक्वेशन की प्रोडक्शन साइड के बारे में भी बात करें और उस पर जोर दें। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि वो ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि अपने अखराजात पे काबू करके पैसा बचाना आसान है, बजाय इसके कि दौलत की पैदावार को बढ़ाया जाए और इनकम को बढ़ाया जाए। जब आप लोगों के बहुत बड़े मजमे से बात कर रहे होते हैं तो ज्यादा लोग अखराजात को काबू करके दौलत बढ़ाने की आइडिया को पसंद करते हैं। इस हिकमत अमली में कुछ गलत भी नहीं है और ये बहुत सारे मुख्तलिफ दर्जे के आमदनी वाले लोगों के लिए काम भी करती है। लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, जब आप इन्हीं लोगों को देखते हैं जो ये मशवरा दे रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे डेविड रैमजी, उसका मशवरा हमेशा बचत करने और कर्जों से निजात पाकर जिंदगी गुजारने पर मरकूज होता है, लेकिन उसकी अपनी कामयाबी मनी इक्वेशन की प्रोडक्शन साइड की वजह से है। वो मनी इक्वेशन की कंजम्पशन साइड पर रहनुमाई देते हुए दौलत कमाता है। जहां ऐसे लोगों की बातों को सुनना बहुत फायदेमंद है, वहीं हमें उनके अमाल पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि वो खुद क्या करते हैं। उसकी $200 मिलियन की नेटवर्थ सिर्फ पैसा बचाने से नहीं, पैसा कमाने से बनी है। पैदावार का मतलब यह है कि एक मार्केट में किसी भी शक्ल में रिलेटिव वैल्यू मुहैया करना, और ये सिर्फ एक नौकरी या एक कारोबार के जरिए करना जरूरी नहीं है। ये एक यूट्यूब चैनल की शक्ल में भी हो सकता है, और यही एक चीज मैंने की है, एक बड़े स्केल पर वैल्यू क्रिएट करके, जबकि इससे इनकम भी जनरेट हो रही होती है और पैदावारी सलाहियत में भी इजाफा हो रहा होता है। आपकी दौलत की पैदावार एक डिजिटल प्रोडक्ट की सूरत में भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे आप एक एजुकेशनल कोर्स बना सकते हैं किसी एक सब्जेक्ट पर जिस पर आपको अबूर हासिल है। आप एक ऐप बना सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिसकी मार्केट में डिमांड भी हो और उसके इवज आप इनकम भी कमा सकें। अगर आप ऐसी चीजें एक बड़े पैमाने पर बना सकते हैं तो इसका मतलब है आप बड़े पैमाने पर पैसा भी कमा सकते हैं। लिहाजा आपको इस सोच से बचना चाहिए कि सिर्फ एक ही रास्ता इख्तियार करके आप अपनी आमदन को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप समझते हैं कि इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो हमें स्कूलों में नहीं सिखाई गई, या आप सोचते हैं कि काश आप इन चीजों को कुछ देर पहले सीख लेते, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।